مغربی لندن کے علاقہ پیریول میں کیپٹل سمارٹ سٹی کی جانب سے سالانہ ڈنر کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں پراپرٹی کے کاروبار سے منسلک سینکڑوں افراد نے شرکت کی ہے۔ ریئل اسٹیٹ میں پاکستان میں سرمایہ کاری جاری رکھنے کے حوالے سے مختلف تجاویز کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہی دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف کے غلام حسین امان کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں پاکستانی ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس کے حوالے سے معلوماتی ایونٹس کا انعقاد جاری۔ لندن کے علاقہ پیریویل میں پاکستان میں پراپرٹی کے کاروبار میں سرمایہ کاری کے حوالے سے آگاہی اور مختلف تجاویز کے بارے معلومات پر مبنی ایونٹس اور سالانہ ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ پراپرٹی کے شعبہ سے وابستہ افراد کی بڑی تعداد تقریب میں شریک ہوئی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد پاکستان کا قومی ترانہ پیش کیا گیا، جسے حاضرین نے کھڑے ہو کر سماعت کیا۔ اس موقع پر شرکاء کا کیپٹل سمارٹ سٹی کے منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی اور ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے اس وقت بہت مناسب وقت ہے۔ پاکستان سے ہم لوگ آئے ہیں، روڈ شوز جو کیے ہیں، یہاں پہ جو رسپانس ہمیں ملا ہے اوورسیز کمیونٹی کا، یہ اوور ویلمنگ رسپانس ہے۔ ہم نے انگلینڈ میں پچھلے کوئی 5 یا 6 شہروں میں روڈ شوز کیے ہیں، اور اسی طرح یورپ کے اندر اٹلی میں، اسپین میں ہم نے جا کے روڈ شوز کیے ہیں، اور رسپانس ہمارا اوورسیز پاکستانیز کو وی آر ویری گریٹفل، اور بہت اچھا رسپانس دیا، اور الحمدللہ وی آر ویری گریٹفل ٹو آر اوورسیز پاکستانیز پرٹیکولرلی فار ہیونگ دیئر ٹرسٹ کیپٹل سمارٹ سٹی اور لاہور سمارٹ سٹی کے پروجیکٹس کے اندر جس طرح انہوں نے ٹرسٹ اپنا شو کیا ہے، وی آر ویری گریٹفل۔ ہمارے مور دین 10,000 کسٹمرز ہیں UK اینڈ یورپ میں، سو ہم ان لوگوں کو ان کی جتنی بھی کوئریز ہیں ان کو کرٹیل کرنے کے لیے ہمارا آفس بھی لندن میں بنا ہوا ہے، اور ہماری سیلز، ہمارے جتنے بھی آپریشنل ورک ہے اس آفس سے کنڈکٹ ہو رہا ہے۔ تو اب UK اور یورپ جو ہے ہماری جسٹ لائک اے فیملی۔ آج کا ایونٹ ایک طرح سے کنکلوژن تھا یہاں پہ، اور ایک بہت کامیاب ایونٹ یہاں پہ ہوا، جس میں ہماری گڈ لک یہ ہے کہ زاہد رفیق صاحب جو HRL کے چیئرمین ہیں وہ خود شریک ہوئے، مجیب الرحمان خان صاحب شریک ہوئے، اور پورے UK سے لوگ یہاں پہ تشریف لائے اس ایونٹ کو شریک کرنے میں۔ انہوں نے اپریشیٹ کیا حبیب رفیق کی ایفرٹس کو۔ ہم لوگ کیپٹل سمارٹ سٹی کے لیے ایز دیئر لائرز ہم کام کرتے ہیں، اور ہم نے ان کی ڈیو ڈیلیجنس بھی کی ہے، اور ہم لوگ کولیبریٹ کرتے ہیں ڈائریکٹ لاہور چیمبر آف کامرس اور فیڈریشن چیمبر آف کامرس کے ساتھ بھی، تو ہم نے وہاں پہ بھی ان کی انسٹرکشن پہ ان کی ڈیو ڈیلیجنس کر کے ان کے ساتھ کافی کلوزلی کام کیا ہے۔ ماشاءاللہ بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے، اور یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ لوگوں کا اسمارٹ سٹی پہ، حبیب رفیق پہ اور تمام ان کے سیلز پارٹنر پہ بہت زیادہ اعتماد ہے۔ آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اوورسیز پارٹنرز ہیں جنہوں نے پاکستان میں انویسٹ کیا ہے، اسمارٹ سٹی میں انویسٹ کیا ہے، اگر ان کا کوئی کویسچن ہے وہ ان سے کویسچن پوچھ سکتے ہیں۔ اور ایک ابھی ہم نے روڈ شو بھی کیا تھا جس میں ہم نے گلاسگو، لوٹن، برمنگھم، مانچسٹر کور کیا تھا، اور یہ اسی کا ایک جو اختتامی پروگرام تھا آج۔ بہت ہی اچھا ایونٹ تھا، ان لوگوں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے یہ ایونٹ کیا ہوا ہے، اور ایسے ایونٹ جو ہیں وہ اور ہونے چاہیے اس ملک کے اندر، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کتنی سیف ہے۔ اس طرح کے ایونٹس ہمیشہ ہونے چاہیے، اور لوگوں کو اپریسیشن اور کریج ملنی چاہیے کہ ہمیں پاکستان میں جا کے بہت ساری پراپرٹیز خریدنی چاہیے۔ بہت اچھا لگا یہ پراپرٹی کا جو ہے، اور سب کو اپنے بیک اپنی کنٹری میں پراپرٹی لینا چاہیے، اور کیونکہ ہمیں آخر کار تو اپنی کنٹری میں جانا ہی ہے۔ بہت ساری انویسٹمنٹ جو ہے پاکستان میں گئی ہے تھرو کیپٹل سمارٹ سٹی اور لاہور سمارٹ سٹی میں، تو آج یہ پبلک کی اتنی بڑی گیدرنگ دیکھ کے اس بات کا ثبوت آپ کو مل جائے گا کہ کیپٹل سمارٹ سٹی اور کیپٹل لاہور جو ہے انہوں نے اچھا انویسٹمنٹ جو موقع فراہم کی پاکستانی کمیونٹی کو، اور میکسیمم ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے جو پاکستان کی بڑی ضروری ہے۔ ایسے ایونٹس اور ہونے چاہیے اپنی اوورسیز کمیونٹی کو بتانے کے لیے کہ کتنے اچھے پروجیکٹس ہیں پاکستان کے اندر۔ بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہاں پہ جو پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں ہی انویسٹ کر رہے ہیں، تو یہ ایسے مواقع بہت کم ملتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ جو پروجیکٹ ہے نا یہ بہترین پروجیکٹ ہے۔ This is a private organization. HRL is one of the finest and the biggest developing company in Pakistan. So اس کا کسی بھی گورنمنٹ ٹاپک کے ساتھ یا گورنمنٹ چینج کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ HRL will deliver what they have said, and inshallah ta'ala you will see this growing Pakistan in a smarter way. کیپٹل سمارٹ سٹی کے زاہد رفیق اور قاضی انویسٹمنٹ کے ثاقب نے ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں پاکستان میں سرمایہ کاری میں نمایاں کارکردگی پیش کرنے والے کاروباری حضرات میں شیلڈ پیش کی۔ سالانہ ڈنر میں آرگنائزر نے شرکاء کے پاکستان میں محفوظ سرمایہ کاری کے حوالے سے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تقریب کے منتظمین اور دیگر شرکاء کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان ریئل اسٹیٹ بزنس میں سرمایہ کاری کے لیے بہترین آپشن ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو کئی ایسے منصوبے میسر ہیں جن میں وہ بلا خوف و خطر سرمایہ کاری کر
सकते हैं। तकरीब के आखिर में ग्रुप फोटो सेशन हुआ और शुरका की पुरतकल्लफ खानों से तवाज़े की गई। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़, यूके। पंजाबी स्टेज शो 3 रंगीले ने नॉर्दर्न आयरलैंड में शानदार परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड कायम कर दिया। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से बड़ी तादाद में शायकीन ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात फैसल मिर्जा की रिपोर्ट में। आज मैंने यकीन हो गया मैं सच्ची मुच्ची नहीं सही है। हाँ माइक उधर पे मैं सारा गाना नॉर्दर्न आयरलैंड की दारुलहुकूमत बेलफास्ट में पाकिस्तान स्टेज अदाकारों ने मेला लगाकर साबित कर दिया कि जंगल में मंगल की कहावत पूरी की जा सकती है। इस शो में नॉर्दर्न आयरलैंड बल्कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की, जो कि एक रिकॉर्ड तादाद थी जिसकी मिसाल पहले कभी देखने को नहीं मिली। शुरका ने इंतजामिया और अदाकारों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने स्टेज को मुकम्मल फैमिली माहौल में बदल दिया। बेलफास्ट में इस फैमिली इवेंट को मुनक्किद करने पर शायकीन आसिम सत्तार, यासिर सबूर, हमाद मुजफ्फर के साथ साथ मीडिया पार्टनर सियासी डेरा और 92 न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा किया। बहुत ज़बरदस्त है। ये 2 आर्टिस्ट मेरे साथ खड़े हैं, मायरा और सदफ, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही इन सबकी और डबलिन से भी लोग आए थे और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोग। आज इवेंट हुआ है, कॉमेडी इवेंट बेलफास्ट में एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट हुआ है और ऐसे से इवेंट ख्वाहिशमंद है कि डबलिन में भी हो। बहुत अच्छा लगा जी आज का हमारा ड्रामा 3 रंगीले, जिसे नसीम विक्की साहब ने लिखा था और डायरेक्ट भी उन्होंने किया था। हनी अलबेला साहब की ये बड़ी भरपूर काविश थी, वो वहाँ से लेकर आए और ख़ास तौर पर ख़वातीन जो हमारे साथ आई, मैं बड़ा ही मशहूर हूँ इन बच्चियों का। तो जितनी मेहनत और मोहब्बत हमने की थी इस सारे सिलसिले में, उससे ज़्यादा यहाँ आयरलैंड से हम मोहब्बत लेके जा रहे हैं और इंशाल्लाह जब भी मौका मिला मैं तो वहाँ से भाग के आ जाऊँगा। बहुत मज़ा आया इत्थे बेलफास्ट दे विच और रियली इंजॉय किया। एक बड़ा फैमिली शो है और असी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये डबलिन दे विच लेके आ रहे हैं और असी डबलिन दी पाकिस्तानी कम्युनिटी नूं कहने हैं कि डबलिन तैयार हो जो, असी आ रहे हैं। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। बेलफास्ट हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं और हम लोग होप करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो इससे ज़्यादा बेहतर क्राउड होगा। पहली दफ़ा यहाँ आए, फैमिलीज आई हुई थी, लेडीज आई हुई थी। यहाँ पे बेलफास्ट के अंदर हम लोग आए, बहुत ज़बरदस्त शो। हनी अलबेला साहब ने माशाल्लाह पूरी टीम इनकी बहुत एंजॉय किया। हम लोगों ने बहुत कम इस तरह की इंटरटेनमेंट हमें यहाँ पे मिलती है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये लोग यहाँ पे आए और पीओसी की पूरी टीम की तरफ से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू राना साहब, मैं खुद आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपकी पूरी टीम का, आसिम सरदार साहब का, उनके भाई आदिल साहब का, अदील साहब का और जितने दोस्त हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतनी रिस्पेक्ट यहाँ पे बेलफास्ट में हमें मिलती है जब भी आते हैं हमेशा। आज फैमिलियों से हाल कचाकच भरा हुआ था और मुझे इतना अच्छा लगा और इतना प्राउड फील हुआ कि हम जो काम कर रहे हैं उसकी अप्रिसिएशन बहुत अच्छी आ रही है। इन सब की काविशों से यहाँ ऐसा शो करवाना मुमकिन हो सका और उसके साथ ही ये ऐलान भी किया कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में बहुत जल्द पहली दफा पंजाबी स्टेज शो होगा जिसमें पाकिस्तान से बड़े पंजाबी अदाकार शिरकत करेंगे। बेलफास्ट में होने वाले इस पंजाबी स्टेज शो को बड़े लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा। इस स्टेज शो की वजह से अब रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में डबलिन में एक बड़ा पंजाबी शो होने जा रहा है जिसका क्रेडिट हनी अलबेला, इफ्तिखार ठाकुर और इनकी टीम को जाता है। इंशाअल्लाह डबलिन की जो अवाम है बहुत जल्द इस सारी टीम को डबलिन में देखेंगे। फैसल मिर्जा, 92 न्यूज़, बेलफास्ट, आयरलैंड। दुनिया भर में महंगाई का जो तूफान है उससे यूरोप भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। स्पेन में पेट्रोल के बाद खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जिसके बाद हुकूमती इक़दामात आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुके हैं। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद से जानते हैं। जी शाहिद अहमद, बताइएगा कि महंगाई से स्पेन और यूरोप के दीगर ममालिक के शहरी किस कदर मुतासिर हुए हैं? जी देखिए, दुनिया भर में महंगाई का एक तूफान है जिसके असरात यकीनन यूरोप में भी आ रहे हैं। मैं इस वक्त यूरोप के अहम मुल्क स्पेन में खड़ा हूँ जहाँ महंगाई की जो शरह है गुज़श्ता महीने 7.8 थी, जबकि अब के बाद यानी कि जून के महीने में महंगाई की जो रफ्तार है वो 10.2 की शरह से उसमें इजाफा हो रहा है। पेट्रोल की कीमतें आलमोस्ट 2 गुना हो चुकी हैं, यानी कि 95 से 1 यूरो में जो 1 लीटर हमें पेट्रोल दस्तियाब था, अब उसकी जो प्राइस है वो 220 तक जा पहुँची है। पेट्रोल की जो कीमत है वो बढ़ने से जो बहुत सारे शोबे हैं वो मुतासिर होते हैं और महंगाई में बराह रास्त जो है वो इजाफा होता है। यही नहीं बल्कि जो यूक्रेन रूस की जंग है उसके असरात भी यूरोप को
लग रहा है। जो स्पेन है वो इम्पोर्ट करता था सूरजमुखी का ऑयल और मकई जो है वो बड़ी मिकदार में यूक्रेन से इम्पोर्ट करता था, जिसकी बंदिश के बाद न सिर्फ स्पेन में महंगाई में इजाफा हुआ है खासतौर पर खुदनी तेल के ऑयल में, बल्कि स्पेन को अमेरिका से ये चीज़ें जो हैं ये इम्पोर्ट करना पड़ रही हैं। इसके अलावा अगर मैं किरायों की बात करूं तो चाइना से जो एक कंटेनर मंगवाया जाता था वो $1000 में बुक होता था, अब उसकी प्राइस 7 से $8000 बताई जा रही है। मैड्रिड और बार्सिलोना के दरमियान जो किराए हैं, जो एक माल बर्दार ट्रक है उसकी प्राइस अगर €550 थी तो उसको बढ़ाकर €1050 कर दिया गया है। इसके अलावा जो खाने पीने की अशिया हैं, जहाँ भी आप जाएं मार्केट में महंगाई का एक तूफान है और लोग जो हैं वो शिकवा खुना नज़र आते हैं। जो नॉन अल्कोहल ड्रिंक्स हैं खासतौर पे उनमें 20% इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा जो हुकूमत है वो इक़दाम उठाने में मसरूफ़ है। 14,000 सालाना या इससे कम जिन लोगों की आमदन है उनको हर माह €200 की इमदाद देने का ऐलान हुकूमत की जानिब से किया गया है। यही नहीं बल्कि जो अंदरूनी शहर किराए हैं उनमें भी नुमाया तौर पे कमी है वो की गई है। मगर आवाम के लिए बड़ी खबर ये है कि आने वाले दिनों में महंगाई में मज़ीद जो इजाफा है उसकी तवक्को की जा रही है। जी स्कॉटिश रेफरेंडम के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं डेनी में मौजूद नुमाइंदा 92 न्यूज़ कैसर हबीब से। जी कैसर हबीब, बताइएगा स्कॉटिश अवाम इस रेफरेंडम के हवाले से क्या जज्बात रखते हैं और अगर रेफरेंडम होता है तो क्या नतीजा निकलेगा? जी बिल्कुल, स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन ने गुज़श्ता दिनों स्कॉटिश पार्लियामेंट में दूसरा स्कॉटिश रेफरेंडम का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक 19 अक्टूबर 2023 जो है वो डेट प्रपोज कर दी गई है, जिसमें स्कॉटिश जो है वो अपना दूसरा रेफरेंडम उसमें अपना वोट हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। इस हवाले से जैसे ये ऐलान किया गया, स्कॉटलैंड में एक जो यहाँ के शहरी हैं उनमें एक खुशी की लहर दौड़ गई, चूँकि जो 2014 में रेफरेंडम हुआ था उसमें जो रेशो थी वो कम थी, चूँकि बरतानिया से अलहदा होने के लिए स्कॉटलैंड को जो है वो ज़्यादा वोट दरकार थे, रेफरेंडम में ज़्यादा परसेंटेज दरकार थी। जो इस वक्त जो है जो गुज़श्ता जितने इलेक्शंस हुए हैं उसके प्रपोर्शंस को देखा जाए, उसकी अगर परसेंटेज को देखा जाए तो ये रुझान दर्जा बदर्जा बढ़ता चला गया और लोगों का जो रुझान है वो बरतानिया से अलहदगी की तरफ आ गया। और जैसे ही ब्रेक्जिट हुआ उसके बाद स्कॉटिश गवर्नमेंट ने ये, बल्कि यहाँ की आवाम ने ये डिसाइड कर लिया कि उन्होंने अब जो है वो बरतानिया से अलहदा होना है और जो यूरोपीय यूनियन है उनके साथ जाके जो है वो मिल जाना है। और इस तरीके से लोगों ने, जैसे ये खबर मिलती है, लोगों ने सोशल मीडिया पे, अखबारात पे अपनी मुहिम तेज़ कर दी है। जो इस आज़ादी के हक़ में है उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू कर दी है और अपने पोस्टर छपवाने शुरू कर दिए हैं। लोग बड़े एक्साइटेड हैं। इस वक्त ऐसे लोग भी जो हैं जो कि बिल्कुल जो उस गुज़श्ता दिनों या गुज़श्ता जो कुछ सालों से वो इसके हक़ में नहीं थे, वो भी इसके हक़ में जा रहे हैं और प्रपोर्शन आज़ादी का बढ़ चुका है। जो लास्ट सर्वे हैं उसमें तकरीबन इस वक्त जो है वो आप यूँ कह लें कि 60% जो है यहाँ की आवाम जो है वो यस के हक़ में है, स्कॉटलैंड की आज़ादी के हक़ में है। और ये जो है रेफरेंडम ये बिल्कुल इस दफ़ा दुनिया के नक्शे को बदल के रख देगा। और स्कॉटिश गवर्नमेंट की जो है उनकी जो प्लान है, चूँकि उन्होंने मेजॉरिटी जीती और उन्होंने जो पार्लियामेंट पे जो उनकी मेजॉरिटी है उनका मकसद ये था कि जैसे अगर हम मेजॉरिटी लेते हैं इसका मकसद यही है कि लोग अपने स्कॉटलैंड को एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क देखना चाहते हैं। और इस हवाले से जब एशियन कम्युनिटी से बात की गई तो वो भी ये चाहते हैं कि जो महंगाई का इस वक्त जो तूफ़ान बपा हुआ है यहाँ पे ब्रेक्जिट के बाद, जो महंगाई है और जो कटौती की जा रही है इनके बेनिफिट्स पे, इनकी जो फैसिलिटीज़ है उसको कम किया जा रहा है, उससे काफ़ी जो है लाइफ जो है अजीरन हो चुकी है और महंगाई ने भी यहाँ जीना मुहाल कर दिया है। उसके लिए आपका यूरोपीय यूनियन के साथ अटैच होना वो ही स्कॉटलैंड के लिए फ़ायदेमंद है। जी अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान का बड़ा एजाज़। अमेरिकी रियासत टेक्सास की बड़ी काउंटी फोर्ट हेंट ने शेरिफ की जानिब से एजाज़ी शेरिफ के एजाज़ से नवाजा गया है। शेरिफ ऑफिस पहुंचने पर पुलिस अफसरान की जानिब से सफ़ीर पाकिस्तान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, अमले का तारुफ कराया गया। इस मौके पर सफ़ीर पाकिस्तान को मुख्तलिफ ऑपरेशनल अमूर के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। इसके बाद पुरवकार तकरीब में शेरिफ फोर्ट हेंट काउंटी की जानिब से पाकिस्तानी सफ़ीर को काउंटी के एजाज़ी शेफ का तकर्रुरनामा भी पढ़कर सुनाया गया। हाज़रीन ने तालियां बजाकर सफ़ीर पाकिस्तान को ये एजाज़ मिलने पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर सफ़ीर पाकिस्तान की दुनिया भर में बेलौस खदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर ह्यूस्टन में पाकिस्तानी काउंसिल जनरल इब्रार हाशमी और इरफानुल्लाह के खदमात को भी खूब सराहा गया और एजाज़ी शील्ड से भी नवाजा गया।
जर्मनी के शहर म्यूनिख में इंडस अस्पताल और हेल्थ नेटवर्क के लिए फंड रेजिंग की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इंडस अस्पताल के बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर अब्दुल बारी खान और पाकिस्तानी टीवी अदाकार नुमान एजाज ने तकरीब में खास शिरकत की है और जर्मनी भर से लोगों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात असगर मिर्जा की रिपोर्ट में। जर्मनी के शहर म्यूनिख में इंडस अस्पताल और हेल्थ नेटवर्क के लिए फंड रेजिंग की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इंडस अस्पताल के बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर अब्दुल बारी खान और पाकिस्तान टीवी अदाकार नुमान एजाज ने तकरीब में खास शिरकत की और जर्मनी भर से लोगों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक और नात शरीफ से हुआ। तिलावत के बाद इंडस अस्पताल के बारे में प्रेजेंटेशन दी गई और तमाम इकदामात बारे शुरका को आगाह किया गया। म्यूनिख से डॉक्टर फातिमा अब्बासी और शारिक जावेद ने इस इवेंट की मेजबानी की और जवार सलीमी, नवीन राशिद और काशा ने इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में उनका साथ दिया। तकरीब में हाजिरीन ने 47,500 यूरो तकरीबन 1 करोड़ रुपए के अतियात देने का ऐलान किया और इस बात का अज़्म किया कि वो इस मिशन में आइंदा भी इंडस अस्पताल का साथ देंगे और बाकी दोस्तों और रिश्तेदारों को भी तरगीब देंगे। आखिर में मेहमानों के लिए हिलाल बूफे का इंतजाम था। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, जर्मनी। ऑस्ट्रिया के शहर वियना में सफारत खाना पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम माहाना ई कचहरी का इनेकाद किया गया है, जिसमें सफ़ीर आफ्ताब अहमद खोकर ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल सुने। सफ़ीर पाकिस्तान ने सफारत खाने में पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ एक मसरूफ़ दिन भी गुजारा। सफ़ीर आफ्ताब अहमद खोकर ने कम्युनिटी को पासपोर्ट एमिनिस्ट्री स्कीम 2022 पाकिस्तान की तरफ से पोस्टल कन्वेंशन की तौसी और ऑस्ट्रिया के वज़ीर दाखिला से मुलाकात और दीगर कौंसल अमूर के बारे में बताया। उनका कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान ने दोहरे पासपोर्ट की मनसूखी के लिए एक दफ़ा की रियायत दी थी। एमिनिस्ट्री स्कीम की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2022 मुकर्रर की गई है। पाकिस्तान ने पोस्टल कन्वेंशन की तौसी का अमल मुकम्मल कर लिया है। इससे ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया के सफारत खानों से प्रोसेसिंग और तस्दीक की ज़रूरियात में कमी आएगी। सफ़ीर पाकिस्तान का कहना था कि ऑस्ट्रिया के वज़ीर दाखिला के साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल उठाए हैं। आखिर में सफ़ीर ने कम्युनिटी का शुक्रिया भी अदा किया है। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से ऑनलाइन खुली कचहरी का एहतमाम किया गया है, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पर गुफ्तगू की गई है। डिप्टी हेड ऑफ मिशन राना समर जावेद ने कई पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए अहकामात भी जारी कर दिए हैं। देखते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद घुमन की रिपोर्ट। सफारत खाने पाकिस्तान मास्को में तैनात डिप्टी हेड ऑफ मिशन राना समर जावेद ने रूस में मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल सुने और उन्हें पासपोर्ट की फरहमी समेत मुख्तलिफ अमूर पर फौरी तौर पर रहनुमाई फराहम की। इस मौके पर काउंसलर आमिर परवेज भी मौजूद थे। ऑनलाइन कचहरी में शरीक ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इस मौके पर अपने मसाइल से आगाह किया। राना समर जावेद ने बताया कि रूस में कोरियर सर्विस में तातुल की वजह से पासपोर्ट की फराहमी में कुछ मसाइल थे जो अब खत्म हो चुके हैं और इस हवाले से कुछ मुतबादल ज़राए इख्तियार करने पर भी गौर किया जा रहा है। डिप्टी हेड ऑफ मिशन ने पाकिस्तानी बरादरी पर जोर दिया कि वो वतन भिजवाई जाने वाली रकूम के लिए कानूनी ज़राए इख्तियार करें ताकि तरसीलात ज़र की मदद से पाकिस्तान की मईशत को भी मजबूत बनाया जा सके। राना समर जावेद ने रूस में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी को यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तानी सफारत खाना और उसका तमाम अमला अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद और रहनुमाई के लिए हर वक्त दस्तयाब है। शाहिद घुमन, 92 न्यूज़, मास्को, रूस।